कर दिया। Namaskar. We have still 8 minutes. मैं हूँ डॉक्टर के अग्रवाल and these 8 minutes we will take to introduce ourselves. Except for our co-host, वो 10 बजे से चालू करेंगे. I will request not everybody, but जो different schools हैं, वो अपने स्कूल का एक स्कूल से एक पर्सन अपने आप को बता सकता है. आई एम सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो स्कूल. जैसे सीमा सेठ जी सलवान पब्लिक स्कूल से हैं, सो वी नो सलवान पब्लिक स्कूल इज हेयर. वी नो दैट वी हैव कवि भारतीय विद्यालय चेन्नई से मिस लोला शिवशंकर हैं. वी हैव फ्रॉम DLDAV मॉडल स्कूल से वीना जी हैं. And we have Ashok Vihar Springdale School se we have Darshana ji, and we have Tarushi Gautam Springdale Ashok Vihar. We have Seema Yadav from LK International, then Neeru from Greenfield School. We have Nidhi Mahajan from Lovely Public School, and then Pallavi also from there. Then we have Aarti Mishra from IK International School. Then we have Model School Makhija ji. We have बाकी स्कूल्स अपने आप बोलना चालू कर दें. इसके साथ में जो है one person from each school can talk about her or his name along with the name of the school. Morning, sir. I am Pooja from DAV Rohini. Hello. DAV Morning, Rohini, sir. Pooja hai, yes. Good morning, sir. Ashok Goel, this side from DAV Public School, Shresth Vihar. Very good. Thank you. Welcome. Next. Pranam, sir. Good morning, sir. This is Monica. DAV Pushpanjali. DAV Pushpanjali se Rashmi Raj ji, yes. Namaskar, sir. Good morning, sir. This is Monica from Darshan Academy School. Yes, Monica ji, namaskar. Hello, good morning, sir. Yes. I am from Swadhyay Bhavan, Ranjana Nagvekar. Very good. Good morning, sir. Good morning, sir. I'm Shravanti Rakshit from Greenfield School. Very good. Good morning, sir. I am Good morning, sir. I'm Rita Sirwani from Bhaji Hansraj Model School. Good morning, sir. Mrs. Gitanjali Lakhani calling from Tagore Senior Secondary Mayapuri, coordinator. Very good. Good morning, sir. Shrauli Chatterjee from Greenfield School, Safdarjung Enclave. Very good. Good morning, sir. Rita Batiani from DLDAV Model School, Shalimar Bagh. Hello, good morning, sir. Neeta Chhabra from DLDAV. Hello, good morning, sir. Hello, good morning, sir. Yes. This is Anu Dhingra from Evergreen Public School. Very good. Good morning, sir. This is Neeru Tuteja from Greenfield School. Good morning, sir. Bhavna Kapoor from DLDAV Shalimar Bagh. वेरी गुड. एक स्कूल से एक ही जना बोले, वो ही सबके नाम बोल रहे हैं. Good morning, sir. I'm Seema from Shivali Bajaj from DLDAV Shalimar Bagh. Very good. नमस्कार डॉक्टर साहब, ज्योति अरोड़ा फ्रॉम माउंट आबू स्कूल. नमस्कार. यस, नमस्कार. आप तो हमारे Good morning, sir. Seema Sarna from Arya Public School. Very good. Very good. Good morning, sir. I am from St. Gregory School. Sugandha Saxena from Lovely Playway School, Nirman Vihar. Very good. कुछ चलाओ. Very warm good morning, sir. National Public. Good morning, sir. Seema Sarna from Arya Public School. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. Morning, sir. Nahid Latif from Lovely Public Senior Secondary. Good morning, sir. Myself, Anita Vadera from DLDAV. Very good, Anita ji. Good morning, sir. So we have teachers from large number of schools. सब लोगों को मेरा प्रणाम. आप सब लोग से आशीर्वाद लेके मैं स्टार्ट करता हूँ. We still have 4 minutes. आप लोगों से मैं सबको चाहूँगा कि सबको. Good morning everybody.
Good morning, sir. Agnes from Lovely Public Senior Secondary School. Good morning, sir. Good morning, ये आवाज Dr. Agarwal. नमस्कार। आप सब Good लोगों morning, को sir. Good morning, sir. Good morning, Dr. Agarwal. This is Good morning, sir. Good morning, ma'am. नमस्कार बेटे मुद्दत जी। Good morning, sir. I am Akshay Chaudhary from Lovely Public Senior Secondary School. Good morning, sir. I'm from St. बोलो आराम से। Good morning, sir. I'm Aisha क्यों चल Chaudhary रहा है ये? from Lovely Public Senior किसी को बोलो। Good morning, sir. Myself Lynette Dhingra of class 9 from St. Lawrence Public Senior Secondary School. Good morning, sir. Myself, Sangeeta Kaur from St. Lawrence Public School, Dilshad Garden. Good morning. नहीं चल रहा। Good morning, sir. Good morning, sir. I'm हाँ, बोलो, Dr. बोलो। Rita Harsha from Dr. K.K. Agarwal. This is Dr. Madhuvir. Namaste. Good morning, Good morning, sir. चलो सबको म्यूट करके मेरे को अनम्यूट कर दो। सपना जी आप स्टार्ट करिए। नहीं आ रहा भाई, बहुत ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है, इसमें से हवा नहीं आ रही। Yes, sir, मैं start कर रही हूँ। Yes, बेटे। Good morning, respected principal, teachers and dear students. I am Sapna, coordinator of Heartcare Foundation of India. It's my great pleasure to welcome all of you in today's webinar. So today we have 5 co-organizers, Mrs. Priyanka Gulati, Principal Evergreen Public School, Vasundhara, Mrs. Pooja Jain, Principal Spring Days Public School, Ashok Vihar, Mrs. Bhavna Malik, Principal Lovely Public School, Priyadashti Vihar, Mrs. Suhasini Kenat, Teacher in Charge, DAV Public School, Shrestha Vihar, and Mr. Abhishek Giri, Principal Saint Giri Senior Secondary School, Rohini. Now I request Mrs. Priyanka Gulati to say a few words. A very pleasant morning to all the parents, teachers, students, and my dearly loved colleagues present here today. And special mention to Mrs. Jyoti Arora, a very dear friend of mine, and a president of Indraprastha Sahodaya and principal of Modern School, for initiating this program and this series, because she's the spine of the program, I personally believe. And it is a proud privilege for us to have on our board a very respectable and reservoir of knowledge, Padam Shri Dr. K.K. Agarwal. It is indeed a great honor, sir, to be a co-host of this talk show. Good morning and warm welcome to you, sir. I can comfortably say that I had a privilege of meeting Dr. K.K. Agarwal, and I was exposed to his pearls of wisdom when I was a young girl of 25 years. At Lakshmi Nagar Health Mela, we met personally to you, sir. And from there till at the age of 48, when I met you 2 years back at award function, your immense knowledge of Vedas and the way you blend both Vedas as well as medical science so beautifully has always struck me. I am always amazed with your knowledge of Vedas as well as the medical science. And I'm sure, and I'm waiting eagerly, that all of us, those who are witnessing to this program, will go with the treasure box full of treasures, with the wisdom and the learnings from you. And to everybody, in short, I would just say that feel free to explore and take as much as they want from the encyclopedia of knowledge. Thank you, sir, and the entire team of HCFLI. Thank you. Mrs. Pooja Jain. Mrs. Bhavna Malik. सपना उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा। सुहासिनी के नाथ, मिसेस सुहासिनी।
Yes, hello. A very warm good morning to all present on this webinar. Now, all of us know since March, students all over India have been forced to stay home and take online classes. Now, while the world is patiently waiting for effective medicine or some vaccine to be developed against COVID-19, schools are getting ready to welcome students to actual classrooms. So in this scenario, it is natural for stakeholders to be anxious and have queries about safety of students as well as teachers. So today, we are very fortunate to be a part of webinar being addressed by eminent physician and cardiologist, Padma Shri Dr. K.K. Agarwal. Now, he is going to guide us about all the measures that need to be taken when the schools reopen. I'm sure all the participants will benefit immensely from his vast experience. I once again welcome to this live session and thanks Dr. Agarwal for letting us know all the things that are needed for the opening of schools. Thank you. Mr. Abhishek Giri. अनम्यूट कर दो मिस्टर अभिषेक गिरी को. रितु अनम्यूट. म्यूट. Good morning, everyone. It's my great pleasure to participate in this virtual session. My heartfelt thanks to Padma Shri Dr. K.K. Agarwal, President HCFI, a great personality who has taken his valuable time for us in spite of his busy schedule. He has honored with many awards to his credit. My sincere thanks to Ms. Jyoti Arora, Principal, Mount Abu School, for her continuous encouragement and support. Distinguished Principal, teachers, and my dear students, welcome to you all. Agarwal sir, we are highly honored to be with you in this virtual session on the topic reopening of school guidelines. We are eager to get enlightened with your valuable words. Thank you. Thank you, Sapna ji. The rest too, when they join, you just give an indication, they can join immediately. Pooja Gupta ji ne kar liya join. Yes, Pooja ji, Pooja ji. Good morning, everyone. Good morning, sir. I was just hoping that I would get unmuted, but thanks. It's never late to be welcoming you, sir. Obviously, we have heard of you and we have been hearing from you for the past 4-5 weeks. And the pearls of wisdom that you have been showering on us. Thanks again to Jyoti ma'am for arranging this for us so that we could become a co-host and understand, look into more solutions for our problem. And today being that reopening of schools, and reopening of schools is something that we are very much concerned about, because whatever we plan, whatever we are doing, we are also bound by the government, and still we have to call children to our schools. It's more like a tough nut to crack. And sir, we are very thankful that you could take this up for us today so that we could understand exactly what we are looking for and prepare ourselves for the same. Thank you. जी पांचवी नहीं, वो अभी शायद ज्वाइन नहीं किया उन्होंने. सर आप शुरू करें, अगर वो बीच में ज्वाइन करेंगे तब करवा देंगे. तो सुशानी जी, पूजा जी, प्रियंका जी, अभिषेक जी, एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पुराने लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर बारी जो को होस्ट बन के आते हैं. इट ऑल स्टार्टेड विद द ज्योति, एंड ज्योत से ज्योत जलाते चलो, वही हम लोग कर रहे हैं. ज्योति जी ने एक ज्योत जलाई थी, उस ज्योत को बाकी सब लोग हर बारी 4-5 लोग मिलके जलाते जा रहे हैं. पर्पस हमारा सिर्फ यही है कि हम, बेसिक पर्पस ऑफ आवर्स इज टू educate ourselves and get prepared. Educate ourselves and get prepared, and not to get into a fear. Not to get into a fear. अभी तक सबसे पहले हम टीचर्स के फियर की बात करेंगे, फिर हम बच्चों के फियर की बात करेंगे. रोज आप पेपर्स में पढ़ते हैं, आज आया कि दिल्ली में 300 मौतें हो गई, 792 केसेस आ गए, और हम लोग सवेरे सवेरे पढ़ के डर जाते हैं.
जबकि हम हमेशा सिखाते हैं कि सवेरे के समय नेगेटिव चीज़ें नहीं पढ़ा करो, और हम ये भी कहते हैं कि रात को सोते वक्त में नेगेटिव चीज़ें नहीं पढ़ो। मैं एक दो वेदों की बात करता हूँ। भगवद गीता कहती है कि जैसी आपकी सोच मरते हुए होगी वैसा आपका जन्म होगा। ये भगवद गीता ने लिखा हुआ है, और हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपको योनि मिलेगी। लेकिन हम सब लोग ये भूल जाते हैं मौत का मतलब क्या है। अगर आप यंग आदमी से पूछोगे कि जैसी तेरी मौत होगी, बोले जब होंगे बुरे तब देख लेंगे। दैट विल बी द स्टैंडर्ड आंसर ऑफ ए चाइल्ड, कि जब बुरे होंगे तब हम बदल लेंगे अपने आप को, तब हम अच्छा इंसान बन जाएंगे। दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। मेडिकली हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि एनेस्थीसिया देने से पहले अगर मैं किसी को कोई सवाल पूछूं तो जैसे ही एनेस्थीसिया के बाद में उसको होश आएगा वो इमीडिएटली उसका जवाब देगा। दैट मीन्स एनेस्थीसिया के दौरान ही डाइड, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेथ। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू डेथ। उस हिसाब से रात में सोते वक्त में जो आपकी सोच होगी उसी सोच से आप सवेरे पैदा होंगे। सो देयरफॉर इन द नाइट अगर आप एक प्रॉब्लम लेके सो कि मुझे कोविड के लिए इलाज ढूंढना है, एक टीचर बोली कि मैं कोविड के लिए क्या करूं, एक बच्चा बोले कि मैं कोविड के लिए क्या करूं, ये अगर उस बच्चे की लास्ट थॉट होगी तो उसी थॉट से ड्रीम्स आएंगे उसको, और जब वो डीप स्लीप में चला जाएगा और सुबह जब वो उठेगा तो वो उसी सोच से उठेगा। Therefore, respected teachers and प्यारे बच्चों, रात में जो आप सोते वक्त में आपकी थॉट है that should be either positive और जिज्ञासु। इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। So you should be sleeping either with a positive thought or with the thought of कि इसका जवाब नहीं मिल रहा, मुझे जवाब मिलना चाहिए। तो सवेरे उठोगे तो आप उसी सोच से पैदा होगे। So भगवद गीता का जो वो वर्णन था कि जिस सोच से आप मरोगे, sleep is also like a death। स्लीप के अंदर में यू आर एब्सोल्युटली जीरो इन योर पावर, इट इज लाइक ए डेथ। तो सवेरे उसी सोच से आप उठोगे। आई गो फर्दर फॉर टीचर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन कि इस वक्त में मेरी सेल्स मर रही हैं और नई सेल्स पैदा हो रही हैं। आप देखते हैं बाल उगते हैं, नाखून उगते हैं, आपकी स्किन के अंदर में सेल्स नहीं आती हैं, आपको पेट में अल्सर हो जाते हैं, वो हील कर जाते हैं। So at every moment, my cells are dying and my cells are reappearing, regenerating. My cells मर भी रही हैं, पैदा भी हो रही हैं। तो इस वक्त जो आप मेरी बात कर रहे हैं, इस वक्त में जो मेरी सेल मर रही है, जिस सोच से मेरी सेल मर रही है उसी सोच से मेरी नई सेल पैदा होगी, जिसे हम बोलते हैं सेलुलर हैप्पीनेस। तो इस वक्त में अगर आपने अखबार पढ़ा दिल्ली में 303 मौतें, एकदम से डर बैठा, तो उस टाइम में जो हमारी बॉडी के अंदर में सेल्स रिप्लेस हो रही हैं, डेड होके नई सेल्स आ रही हैं, दे विल बी रिप्लेस्ड विद फियरिंग सेल्स। डर के साथ में सेल्स पैदा होंगी। तो सबसे पहले टीचर्स का रोल ये है डर को निकालना। कोविड है, आया है, जाएगा। HIV आया था, हमने जीतना सीखा। MDR ट्यूबरकुलोसिस है, हमने उसके ऊपर में ट्रीटमेंट सीखा। तो फर्स्ट थिंग इज टेक द फियर आउट। अगर हम डरेंगे तो ये वायरस हमारे पे हावी हो जाएगा। So the first message of a teacher to the parents is no panic, we are there with you। मैं एक कैंपेन चालू करता हूँ बिकॉज मेरा नाम, आई एम द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।
currently I am the president of all the 19 medical associations. So मैं क्या कहता हूँ लोगों को, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो। इसी प्रकार से एक प्रिंसिपल का काम है, क्या बोलेंगे टीचर्स को, क्यों सबको, पूरे पेरेंट्स को, मैं हूँ ना। If every principal says मैं हूँ ना, यानी कि I take the responsibility, here immediately fear कम हो जाता है। If all of you start behaving the way I do, मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि आप लोग टीचर्स पेरेंट्स का डर बिठाओ, आपका डर के लिए मैं हूँ ना। अगर आपको कोरोना होता है, मैं हूँ, आई एम देयर। आप मेरे को 24/7 कांटेक्ट करिए एंड वी विल टॉक। इस वक्त में कम से कम नहीं तो 40 से 50 फैमिलीज हैं जो मेरे से सुबह शाम बात करती हैं और उन सबका डर मैंने निकाल रखा है। तो मेरा आंसर इसको चिंता करते हो, मैं हूँ ना उसके साथ। तो ये पहला लेसन है आज का, मैं हूँ ना। एवरी प्रिंसिपल शुड से मैं हूँ ना to all the teachers, and every teacher should say to the parents मैं हूँ ना, and every parent should say to their children मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। क्योंकि चिंता वाली बात ही नहीं है, चिंता वाली बात ही नहीं है। इसके साथ में एक्चुअल में चिंता वाली बात नहीं है, because the mortality rate is less than 0.3%, which is much less than the surgical risk of getting any surgery done in a hospital. हॉस्पिटल में जब आप सर्जरी कराने जाते हो, कोई भी रूटीन सर्जरी, उसका रिस्क 1% होता है। इस बीमारी का रिस्क इज 0.3%। अभी चाइना में 6 केसेस आए तो उन्होंने 60 लाख लोगों का टेस्ट किया और 200 केसेस को एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पाया गया। इसका मतलब है हर एक पॉजिटिव केस में 33.3 लोग एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में घर घर में ये बीमारी है, तो फिर चिंता क्यों। चिंता का मतलब ये नहीं है केयरलेस हो जाओ। आप बच्चों को सिर्फ एक ही चीज पढ़ाते हो और वो पढ़ाते हो हाउ टू बी, कि अगर आप बोलोगे कोई चिंता नहीं है तो सड़क पे भागना चालू करो, सड़क पे क्रिकेट खेलना चालू करो, वो तो नहीं होता है ना। प्रिकॉशंस तो हमें लेनी है उसके साथ में जो है। यू कांट क्रॉस द रोड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस तो हमें लेनी है। अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं देन वी कैरी प्रैक्टिकली जीरो रिस्क, और अगर हमारे को हो भी जाता है सो वी कैरी प्रैक्टिकली जीरो रिस्क ऑफ डेथ। 0.3% रिस्क एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट को झेला जाता है, उसके बारे में सोचा नहीं जाता। आप गाड़ी चलाते हैं सोच के नहीं चलाते आज मेरा एक्सीडेंट तो नहीं होगा। सो वन थिंग इज लिव ए फियरलेस सोसाइटी। जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ यू एट द मोमेंट आर विमेन, एक्सेप्ट अभिषेक जी को मैं ले लूँ तो मोर देन 60% to 70% आर विमेन। उसके साथ में सो इफ आई सी हियर इन डिफरेंट थिंग, औरतों के अंदर में इट हैज ए प्रोटेक्शन। सो एज ए विमेन टीचर्स यू आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिवियरिटी, दैट्स वन। तो जितने भी टीचर्स हैं वो सब यंग हैं, अभिषेक जी भी मुझे दिख रहे हैं, सब यंग हैं। यंग ऑल्सो डू नॉट गेट द मोर्टेलिटी अनलेस यू हैव ए अंडरलाइंग डिसीज। अगर आपको अंडरलाइंग डिसीज नहीं है तो आपको खतरा नहीं है। सो नंबर 1 इज टेक द फियर आउट, टेक द फियर आउट। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि फियर के साथ में स्कूल नहीं खुल पाएंगे। हर पेरेंट एक ही सवाल पूछेगा आपसे, आई होप माई चाइल्ड इज सेफ। उसका सिंपल आंसर होना चाहिए मैं हूं ना, बात खत्म। जहां आपने बोला मैं हूं ना, पेरेंट्स वहीं शांत हो जाएंगे। और अगर आप उनको एक्सप्लेन करना चालू करोगे कि नहीं डर तो है और पता नहीं क्या होगा, वो सब पागल हो जाएंगे। सो द बेसिकली आंसर इज वेरी सिंपल, आंसर इज क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। यही सवाल मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। इस वक्त में 979 लोग हैं, सबको मैंने बोल रहा है 979 फैमिलीज में कुछ हो जाता है, क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। एज ए मेडिकल आई एम गिविंग यू दैट मैं हूं ना। वैसे ही आप सारे प्रिंसिपल सारे टीचर्स को बोलो क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। और टीचर्स बोले पेरेंट्स को, पेरेंट्स बोले बच्चों को, एक फियर की वेव खत्म हो जाएगी। I am a part of the meeting of NDMA, which is National Disaster Management Organization, and उस मीटिंग का निष्कर्ष तो यही था कि जुलाई से सारे स्कूल्स खुलेंगे। अब डिबेट इस चीज की है जब स्कूल खुलेंगे
धीरे धीरे खुलेंगे। Now the debate is Asia versus West, India versus West. वेस्ट का कहना है पहले 1, 2, 3, 4 10 साल से कम के उम्र के बच्चों का स्कूल खोल लो। भारत सरकार सोच रही है पहले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल खोलें। दिस इज ए मैटर ऑफ डिबेट, हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो वेस्ट पॉपुलेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे इटली ने खोला, स्पेन ने खोला, उन कंट्रीज ने खोला तो उन्होंने बोला कि 10 साल से कम बच्चों को अगर हम खोलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शरारतें करते हैं, उनको अगर हमने डिसिप्लिन कर दिया तो उनको समझा दिया तो बाकी बच्चे तो अपने आप डिसिप्लिन हो जाएंगे और बाकी बच्चे तो घर पे क्लासेस ले सकते हैं, उनकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। भारत की सोच ये है कि पहले हम 9, 10, 11, 12 को खोलेंगे और उनको हम सीक्वेंसिंग में खोलेंगे। ये आप लोगों का सरकार के साथ जब डिस्कशन होगा, मैं सिर्फ डिसीजन ना लेके दोनों पॉइंट्स रख रहा हूँ। 9, 10, 11 वाले यस घर में पढ़ सकते हैं थोड़ा और देर, दे आर मोर मैच्योर, दे नो हाउ टू टेक प्रिकॉशंस, वो जैसे ही स्कूल में आएंगे उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, डेफिनेटली दे रिक्वायर मोर टीचिंग, दे रिक्वायर मोर केयर। और नंबर 2 है, आप 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों को स्कूल में मिक्स नहीं कर सकते कि वो स्मॉल बच्चों को वो सिखाएं, मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। सो ये एक मैटर है जो सरकार डिसाइड करेगी। दूसरा जो कंसेंसस है भारत सरकार का और बाकी सारी कंट्रीज के स्कूल्स का, नंबर 1, नो मिक्सिंग ऑफ क्लासेस। आप ऐसा नहीं कर सकते क्लास को दूसरे के साथ में, आज इसके साथ मिक्स कर दिया, कल इसके साथ मिक्स कर दिया। जो भी आपकी क्लास होंगी वो मिक्सिंग अलाउड नहीं होगी। पेरेंट्स बाहर बच्चों को उतारेंगे, अंदर नहीं आएंगे। बाहर वो एग्रीगेट होके आपस में बातें नहीं करेंगे। अगर बच्चे को लेने आ रहे हैं तो कार में लेके चले जाएंगे सीधा। बच्चों को खाना जो मिलेगा उनकी सीट पे मिलेगा, कैंटीन में नहीं मिलेगा। Now here I will come to you with a basic fact जो आप लोगों को समझना है, खासकर टीचर्स को। वो इसको मैं कई दिनों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी एम्फेसाइज किया था, मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा मान लीजिए टीचर्स लोग बाहर जा रही हैं, घर पे खाना खा रहे हैं आप लोग, सो नॉर्मली कुछ लोग यहाँ बैठेंगे टेबल के, कुछ लोग यहाँ बैठेंगे, वो गलत है। दोनों लोग यहाँ बैठ के खाना खाइए। एम आई क्लियर? टेबल के एक तरफ बैठ के खाना खाइए ताकि दोनों की हवा एक तरफ जा रही है, उनकी हवा हमारे मुंह पे वापस नहीं आ रही। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने कमरे में बैठे हैं मान लीजिए और आपके सामने एक आदमी बैठा है और उसके पीछे एसी चल रहा है, और जब एसी की हवा मेरी तरफ आएगी तो उसके वायरसेस को भी वो खींच के मेरी तरफ लाएगी। तो इसलिए कभी भी फेस टू फेस मीटिंग ना करो। सो प्रिंसिपल्स जो हैं, आपको मीटिंग करनी है तो अगर आप यहाँ बैठी हैं, प्रिंसिपल जैसे यहाँ दिख रहे हैं मेरे को, तो जो भी उनसे बात करने आएगा वो यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, सामने नहीं बैठेगा। अब देखिए स्कूल के सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, वो फेस टू फेस नहीं बैठे, और उनके आगे दूसरे बच्चे की पीठ है, तो रिस्क इज 0। अगर मैंने यहाँ पे एक बच्चा ऐसे बैठा है और मैंने यहाँ से खांसी करी तो मेरे सारे वायरसेस उसकी पीठ के पीछे के वायरस किस कमीज पे जाके गिरे, वो नीचे जमीन पे जाके गिर जाएंगे। ट्रांसमिशन रेट इज 0। देयरफॉर स्कूल में, बस में, कॉलेज में, प्लेन में, ट्रेन में, जहाँ सारे आप एक तरफ देख रहे हो, when all of you are directing towards one direction, practically the risk is 0. Practically the risk is 0 उसके साथ में। So therefore the transmission of infection within the school is 0. लेकिन अब टीचर तो बोलेगी मैं तो सबको फेस टू फेस बैठी हूँ, टीचर तो यही बोलेगी, पंखा बंद करो, टीचर तो यही बोलेगी। तो इसलिए टीचर हैज टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 feet। टीचर हैज टू बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 feet। दूसरा लकी पॉइंट क्या है टीचर के पास में, टीचर लंबी है, बच्चे छोटे हैं। सो टीचर अगर फेस टू फेस भी मिल रही है,
क्योंकि टीचर लंबी है, टीचर की हवा यूं जा रही है, बच्चों की हवा यूं आ रही है, इन्फेक्शन रेट नहीं है, अनलेस आप दोनों एक साइज के हैं। सो 9, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स जो हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अब पहली क्लास का, दूसरी क्लास का, तीसरी साल का बच्चा तो बोलेगा मैम मुझे आपको पकड़ना है, तो आप क्या करोगी? आप दुत्कार तो नहीं सकते, लेकिन अगर वो फेस टू फेस आ रहा है, आपकी हाइट ऊपर है, उसकी नीचे है, खतरा नहीं है। सो आई एम टेकिंग द फियर आउट। हमें सिर्फ फेस टू फेस अपने आप को बचाना है। सो अब जैसे अगर टीचर बैठी हुई है, स्टूडेंट आती है, तो टीचर खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर लड़की छोटी है स्टूडेंट और टीचर बैठी हुई है तो एक हाइट पे हो जाएंगे। हमें एक हाइट पे नहीं रहना। तो स्कूल में अगर बच्चे एक हाइट पे रह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत कम है। देयर इज नो डाटा अवेलेबल इन द वर्ल्ड कि बच्चों से बच्चों को होता है। पूरी दुनिया में अभी तक एक भी स्टडी नहीं आई है जिसने कहा हो बच्चों से बच्चों को होता है। नंबर 2, बच्चे सारे सामने देख रहे हैं, ट्रांसमिशन होने का चांस नहीं है। तीसरा, हो सकता है स्कूल वाले आपको ये बोले कि जहां पे 3 बच्चे बैठते हैं 2 बैठेंगे। हो सकता है गाइडलाइंस में आए कि एक बेंच में जहां 3 बैठते हैं वहां 2 बैठेंगे। ये हो सकता है सरकार आपसे कहे, लेकिन अगर 3 भी बैठते हैं तो खतरा नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों सामने देख रहे हैं। जैसे प्लेन में बीच की सीट बैन नहीं करी है, बीच की सीट अलाउड करी है, लेकिन वो बीच की सीट वाला केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो उसकी बेसिस में हो सकता है सरकार बोले कि जहां 3 बच्चे बैठते हैं वहां 2 बैठेंगे। ये सरकार की पॉलिसी आएगी, लेकिन खतरा नहीं है, साइंटिफिकली खतरा नहीं है। साइंटिफिकली बच्चे जब ब्रेक होगा तो खाना अपनी सीट पे खाएंगे, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा। सीट पे खाने के लिए नॉर्मली हम कहते हैं बाहर जाके अलाउ, ये आपको अलाउ करना पड़ेगा। हो सकता है सरकार आपको बोले कि ऑल्टरनेट डे क्लासेस लो, एक जने की क्लास एक दिन ऑनलाइन होगी, एक दिन ऑफलाइन होगी। ये सारी सरकार की पॉलिसीज हैं। सरकार आप लोगों के साथ में या तो डायरेक्शंस देगी या मिलके बात करेगी, और हर स्टेट के हो सकता है रूल्स अलग अलग बने। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मेडिकल रिस्क कितना है। सरकार कुछ भी डिसाइड कर ले, आपने सिंपल एक बात बोलना है, मैं हूं ना। उसका बेसिक क्राइटेरिया ये है, बच्चों से बच्चों को ट्रांसमिशन नहीं होता। फेस टू फेस अगर हम बात नहीं कर रहे तो ट्रांसमिशन प्रैक्टिकली इज नॉट देयर। नंबर 3, स्कूल के अंदर में कैंटीन में या बाहर पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए जहां पर भी कैशियर होगा, वो सबसे ज्यादा लोगों से मिलेगा दिन भर में, उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब्जी लेने जा रहा हूं और जो आदमी सब्जी बेच रहा है वो तो दिन में 200 लोगों से मिल रहा है, तो उससे प्रिकॉशन क्या लूं? तो उसकी प्रिकॉशन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सामने बैठ के आपको देख रहा है सब्जियों के लिए, तो आप इधर देखो, आप उसको फेस टू फेस क्यों देख रहे हो? हर लेवल पे आप फेस टू फेस ट्रांसमिशन से बचा सकते हो अपने आप को। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने नौकर को बोलते हैं कि ये ले 100 रुपया सब्जी लिया, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा एक काम कर, आधा किलो ये लिया, 250 ग्राम ये लिया, 200 ग्राम ये लिया, ये कहना बंद करो। देयर इज नथिंग लाइक 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। बोलो ये 100 रुपए का नोट ले, ये 50 रुपए के फल ले और 50 रुपए की सब्जी ले, तो उसको चेंज वापस नहीं लानी पड़ेगी। अगर वो चेंज लेके आएगा, सब्जियों को तो आप घर में आके वॉश कर लोगे, चेंज में तो उसके वायरस आ गया ना। सो इसलिए स्टॉप सेइंग 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम रुपए के हिसाब से। भाई 10 रुपए की मूली लिया, 20 रुपए की बादाम लिया, 30 रुपए का ये लिया, ये 100 रुपया ले ले, 100 रुपया खर्च करके आ जा, ताकि उसको पैसा वापस ना लाना पड़े। इसी तरीके से अपने पेट्रोल लेना है तो ये मत बोलो कि इतने लीटर डाल दे, आप उसको बोल लो ये 2000 रुपए का नोट, ये 2000 का पेट्रोल डाल दे, ये 500 का नोट 500 का पेट्रोल डाल दे। वो अपने आप कैलकुलेट करता फिरेगा 500 रुपए में कितना पेट्रोल आएगा, ताकि आपको चेंज ना वापस लाना पड़े। फिर आपके मन में सिर्फ एक ही डर आएगा टीचर्स के मन में, वो है बच्चों की किताबों का।
बच्चे किताब लेकर आएंगे, आप उसको एग्जाम दोगे, वो किताबें लेकर आएंगे और किताबों के अंदर में वो आप किताबें चेक करेंगे। आपके मन में डर लगेगा कि सारे जजेस, सारे कोर्ट, सारे डॉक्टर्स तो किताबों को हाथ नहीं लगा रहे, तो किताबों से टीचर को तो नहीं हो जाएगा, उसको अभी अवॉइड करो। बच्चों की किताबों को, बच्चे अपनी किताबों को अपने पास रखें, उनके एग्जामिनेशन शीट्स को अभी अवॉइड करो। हम लोग जैसे अगर आप मेरे को दिखाने आते हो, अगर आप पूरी फाइल लेकर आओगे तो मैं बोलूँगा समरी बना के लेकर आओ। नंबर 1, अगर आपकी फाइल आई भी तो एक तो मैं थूक लगा के उसको चेंज नहीं करूँगा, दूसरा अगर मुझे फाइल देखनी भी है तो मैं ग्लव्स को पहनूंगा, और तीसरा है कि मैं बाहर मेरे राम सिंह को बोलूँगा कि 20 मिनट धूप पे रख दे किताब को खोल के, फिर मैं इसको देखूंगा। सो अगर आपके पास में नोटबुक्स आती हैं एग्जामिनेशंस की, या रोज का आपने चेक करना है बच्चे ने काम किया कि नहीं किया, तो उस टाइम पे ग्लव पहन ले। ग्लव पहन के आपने 1 घंटे में ग्लव पहन के सारी किताबें देख ली, अपने सामने एक पानी रख लें, पानी को टच करके आप पेपर को बदले, और जब आपका सारा काम खत्म हो गया फिर आपने ग्लव उतार के इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और फिर आपने अपने हाथ को धो लिया। ये प्रिकॉशंस आपको लेनी होंगी। बच्चों से आपको खतरा नहीं है, लेकिन बच्चे जो सामान घर से ला रहे हैं उनके अंदर में तो आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी। फिर आपको ये भी बोलना होगा कि ये जो घर में सामान उतना ही लेकर आओ जितना आज जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, हफ्ते भर का सामान घर जाके बदलते नहीं, वो रोज की रोज वही फाइलें लेकर आते हैं। तो जितना कम सामान बच्चे लेकर आएंगे, कितना कम पेपर को आप लोग डील करेंगे, उतना आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उसका फायदा होगा। सो अगर हम लेके चले, आज का मैसेज बड़ा क्लियर है कि बच्चों से बच्चों को ट्रांसमिशन की स्टडीज अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में बच्चों से बच्चों की स्टडीज अवेलेबल नहीं है। अगर बच्चे और टीचर के बीच में फेस टू फेस ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, बच्चे इनवेरिएबली मास्क नहीं पहनेंगे, जितना मर्जी कोशिश कर लो, बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, टीचर जी से आप पास आते हुए मास्क नीचे उतार देंगे। 90% हम लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं। 90% ऑफ अस, हम इसको मास्क पहनेंगे और जब बात करेंगे तो नीचे उतार देंगे या फिर नाक से नीचे रखेंगे। 90% डॉक्टर्स भी यही करते हैं। हम सब लोग जो है, जो टीचर्स, यहाँ पे गलतियां टीचर्स जरूर करेंगे, इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर स्कूल में टीचर्स मास्क के बदले में फेस शील्ड पहन के जाएं। बच्चों को दिखाई भी दे रहा है, उनको एक्सप्रेशन भी देख पा रहे हैं और आप इसको उतार भी नहीं सकते। दिस इज फेस शील्ड। फेस शील्ड इज ए रिप्लेसमेंट फॉर ए मास्क, सो यू कैन यूज ए फेस शील्ड। अमेरिका में फेस शील्ड का ज्यादा पॉपुलराइजेशन हो रहा है टीचर्स के लिए। बच्चों के लिए मास्क का जो सवाल है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और गलती से बच्चे मास्क उतारेंगे, एक दूसरे का खेलेंगे उसके साथ में, होने दो, उससे खतरा नहीं है। सो दे विल टेक टाइम टू लर्न। उस लर्निंग पीरियड में उनको खतरा नहीं है बच्चों को। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में खतरा इसलिए नहीं है, बच्चे छोटे हैं। जो बड़े हो गए बच्चे, दे नो व्हाट सेल्फ डिस्टेंसिंग इज। सो अगर मेरा मान लो छोटा बच्चा 1 साल का मेरे गोदी में ले रखा है तो मेरे को रिस्क नहीं है अगर मैंने मास्क पहन रखा है तो। उसकी सांस मेरी सांस से मिल ही नहीं रही उसके साथ में। एक और चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, जो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस करी थी, कि सब बच्चों को बोलो सॉफ्ट बोलो। लास्ट टाइम मैंने आप सब लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे बोलने के अक्षर होते हैं जो बीमारी को बढ़ाते हैं। उसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था, वो था महाप्राण बीमार, जो अक्षर बाहर निकलते हैं, सघोष और वाइब्रेटरी और ऊष्म साउंड्स। अगर मैं स श स ह ये ज्यादा बोलता हूँ, स श स ह ये ऊष्म साउंड हैं, ये मेरे वायरस को थोड़ा सा ड्राई करके उसका साइज कम कर देंगे। फिर मैंने बोला था महाप्राण, जैसे घ क ख ग घ, घ सघोष है और महाप्राण है, पेट से आवाज निकलेगी, जोर से हवा निकलेगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कोई भी चीज, खासकर प्राइमरी स्कूल के अंदर में, तो बच्चों को रिपीट नहीं करवाएंगे। हम बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि 2 एकम 2, बच्चों सब लोग मिलके बोलो 2 एकम 2। तो उससे क्या होगा, आवाज गूंजेगी। किसी भी बच्चों को हम किसी भी चीज को रिपीट नहीं करवाएंगे। और जब भी हम कोई साउंड बोलेंगे, अगर उसमें महाप्राण आ रहे हैं
तो उसको हम नहीं बुलवाएंगे। जैसे घर, व्हेन आई से घर, घ, सो आप खुद करके देख लीजिए, घ आपको 1 फीट तक हवा यहाँ जाती हुई दिखेगी, बिकॉज घ वाइब्रेटरी साउंड है और घ सघोष है और गह महाप्राण है। सो जो लोग हिंदी के टीचर हैं हर स्कूल में, वो अपनी प्रिंसिपल से मिलें, प्रिंसिपल से मिलके संस्कृत के और हिंदी के जो टीचर हैं वो अपनी प्रिंसिपल से डिसाइड करें कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलने से वायरस दूर तक जाएगा। इसलिए और प्रिंसिपल, ये चीजें आपको सरकार से लिख के नहीं आएंगी कि धीरे बोलो, धीरे तो वैसे ही बोलना चाहिए, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। जितना आप सॉफ्ट बोलोगे, तो इसलिए चिल्लाना नहीं, इसलिए बच्चों से रिपीट नहीं कराना कि बच्चों रिपीट करो। अभी फिलहाल हम जनगण को भी नहीं करेंगे। हमारा राष्ट्रीय सॉन्ग है, हमारे जनगण मन अधिनायक जयो है। हालांकि इसमें ज्यादातर अल्प प्राण हैं, लेकिन इसमें कुछ महाप्राण भी हैं। इसलिए हम लोग अभी फिलहाल अपनी प्रेयर, कोई भी प्रेयर हो, उसको चैंटिंग ग्रुप में नहीं कराएंगे, क्योंकि जब ग्रुप में चैंटिंग करोगे तो टीचर्स भी करेंगी साथ में, तो उसकी वायु दूर तक जाएगी। नॉर्मली जब आप चल रहे हैं एडल्ट आदमी, तो उसकी हवा चलने में 6 फीट तक जाती है, दौड़ने में 9 फीट तक जाती है, चिल्लाने में 9 से 12 फीट तक जाती है। और अगर आपका खूब ज्यादा माइक के ऊपर में जोर से चिल्ला रहे हो तो 12 से 13 फीट तक आपकी हवा जा सकती है। कल हमारे साथ में अशोक चक्रधर जी थे, तो वो हमने उनसे पूछा कि आप महाप्राण को कैसे करते हो। कहते हैं जब हमारे पास माइक होता है तो हमेशा हम माइक के सामने अल्प प्राण ऐसे बोलते हैं और महाप्राण ऐसे बोलते हैं। कहते हैं हमें मालूम होता है कि इस अक्षर में महाप्राण आ रहा है, तो हम अपना मुंह माइक से थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि हमारे महाप्राण की वायु गूंजे ना और हमारी हवा दूर तक ना जाए। सो प्यारे बच्चों एंड आदरणीय टीचर्स गण, आज मैंने छोटी छोटी बातें बताई लेकिन इम्पोर्टेंट थी। मेरे को लगा कि बच्चों को ये एक समय है सॉफ्ट बोलने के लिए, कि चिल्लाओ नहीं, रो नहीं, और ये मौका आपको नहीं मिलेगा सिखाने का। इस वक्त में बच्चे सीख लेंगे कि वाई, एंड देन यू कैन हैव ए कंपटीशन इन द स्कूल कि आज का बच्चा सबसे सॉफ्ट कौन बोला, उसको अवार्ड मिलेगा। जितना हम सॉफ्ट बोलेंगे उतनी ये बीमारी नहीं फैलेगी। जितना धीरे बोलूंगा, माइक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, माइक से आवाज गूंजेगी, मेरी हवा दूर तक जाएगी। अगर आपने एसी लगाना है, सेंट्रल एसी आपके पास है नहीं, आपके पास एसी है, लगाइए, लेकिन एसी की हवा मेरे सामने जो आदमी बैठा है उसकी हवा को खींच के मेरी तरफ ना लाए, ये आपने ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, मैं कोई पेरेंट मिलने आया, आपसे मना तो कर नहीं सकते, पेरेंट्स आएंगे मिलने के लिए, आप क्या बोलोगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल अलाउ करोगे। अगर वो पेरेंट्स आपके सामने आके बैठे, मान लीजिए वो पेरेंट पॉजिटिव है और पेरेंट को पता नहीं, और आपके एसी की हवा आपकी तरफ आ रही है, वो भी आपके सामने बैठा है, एसी और आपके बीच में अगर कोई आदमी बैठा है तो उसकी हवा आपके सर के ऊपर में आएगी, सीधी की सीधी उसकी हवा खींच के लेकर आएगी। दूसरा, अपने कमरे में ड्राई मॉपिंग बंद कराइए कि वो झाड़ू लगा रहे हैं। अगर सारे वायरस जमीन पे पड़े हैं और आप झाड़ू लगवा दोगे तो वायरस का साइज तो जमीन में पड़ते ही छोटा हो गया, फिर वो हवा के ऊपर में घूमेगा, आपको इन्फेक्शन देगा। ड्राई मॉपिंग के बदले वेट मॉपिंग कराइए। अब वेट मॉपिंग के अंदर में लोग आगे, आप देख लीजिए, घर की जो आपकी सफाई कर्मचारी होगी वो 2 कपड़े लेके चलेगी, वो यूं साफ करेगी और यूं पहुंच के उसको ड्राई करेगी, ये गलत है। वो क्या करेगी, यूं साफ करेगी और दूसरे कपड़े से पहुंच देगी कि मेरा काम हो गया। लेकिन 20 सेकंड तक वो गीला रहना चाहिए, जैसे हाथ 20 सेकंड तक गीले रहने चाहिए, उसी प्रकार से जो भी वेट मॉपिंग है वो वेट मॉपिंग छोड़ दे, लेट इट ड्राई कंप्लीटली बाय इटसेल्फ। आप उनको सिखाओगे नहीं, वो तो करेंगे ना, उनको तो जल्दी जल्दी आपको दिखाना है कि देखो मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया। आप क्या बोलोगे कि आप मेरे टेबल को साफ कर, आपके पास 20 सेकंड रुकने के लिए नहीं है, वो यहाँ से साफ करेगी, यहाँ से ड्राई करेगी। वायरस को तो 20 सेकंड नहीं मिले ना मरने के लिए, वायरस को तो टाइम चाहिए मरने के लिए। So let it be dry by itself. Let it be dry by itself. Before I ask take question answer session, जो bathrooms हैं वो important हैं आपके जो bathrooms हैं स्कूल के वो बहुत important हैं, क्योंकि वहाँ से ये वायरस स्टूल में 3 महीने तक रहता है। बच्चों के अंदर में कितने महीने तक रहता है हमें नहीं पता। So kindly make sure आपका जो exhaust fan है
वो अच्छा है। और एग्जॉस्ट फैन जो हवा निकाल रहा है दूसरी तरफ, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने 2 क्लासेस के बीच में एग्जॉस्ट फैन लगा रखा हो, या वो एग्जॉस्ट फैन जहाँ पर भी जा रहा है उसको चेक जरूर कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने रखनी है। बाथरूम की सीट्स के पास में सैनिटाइजर्स की कमी ना हो, वहाँ पे साबुन की कमी ना हो, वहाँ पे स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस वहाँ से भी फैल सकता है। ये काफ़ी हद तक नोन है कि वायरस वहाँ से फैल सकता है। नेक्स्ट चीज़ है कि जो स्कूल्स के खुद के मालिक हैं जो यहाँ पर हैं, और वो स्कूल्स जो जिनके मालिकान आपकी सुनते हैं, तो हर प्रिंसिपल के रूम में इमीडिएटली एयर प्यूरिफायर लगवा लीजिए, जिसके अंदर में 12 एक्सचेंजेस पर आवर की कैपेसिटी हो, जो 5 मिनट में आपकी हवा को पूरा बदल देता है, या फिर 6 एक्सचेंजेस पर आवर विच इज 10 मिनट्स। उस सिचुएशन में आप सेफ हैं। दैट विल वर्क लाइक ए नेगेटिव प्रेशर रूम। एंड लास्ट थिंग इज एक गुड न्यूज आप सब लोगों के लिए, कि अगर आपके पेरेंट्स आपके पास आते हैं और आप टाइम देख के उनको टाइम देते हैं, अगर वो मास्क पहन के आ रहे हैं, आपने मास्क पहन रहा है, और वो 9:59 में वहां से निकल जाते हैं, तो आपको खतरा नहीं है, इवन इफ ही इज पॉजिटिव। सो कीप योर कॉन्टेक्ट टाइम विद द पेरेंट्स लेस देन 10 मिनट्स। Nobody, whether it is principal or teacher, have transient time. पेरेंट्स आएंगे, हेलो बोलो, 2 मिनट बोलो, अच्छा नमस्कार, अच्छा एक काम करिए, आपने पेरेंट्स की बात सुन ली, तो आप क्या बोलोगे, अच्छा आप ये काम करो, SMS कर दो मेरे को, WhatsApp कर दो, मैं आपको जवाब दे दूंगी। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन देयर एंड देन। जितना समय कम व्यतीत करोगे, इसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट टाइम। कॉन्टेक्ट टाइम में हम लोगों ने सारे डॉक्टरों को डायरेक्शंस दी हुई हैं, डू नॉट स्पेंड मोर देन 10 मिनट्स विद द पेशेंट। हम लोग पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, 10 मिनट में देख लिया, बाकी बोलते हैं तेरे को दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देंगे, फिर तू फोन कर लिया, तेरे को समझा देंगे कैसा लेना है। सो डू नॉट स्पेंड 10 मिनट्स, मोर देन 10 मिनट्स विद एवरीबडी। मेरा 40 मिनट हो गया है। आई विल हैव डॉक्टर अनिल कुमार to speak for a couple of minutes, and then we will have 20 minutes of question answer. अनिल जी, अनिल कुमार डायरेक्टर एनवायरनमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, ये आजकल हमारे साथ में डायरेक्टर हैं हमारी फाउंडेशन में। यस अनिल जी। नमस्कार सभी को। और जैसा सर ने अभी बताया, डॉक्टर साहब ने, कि हमें जो आफ्टर दी जो लॉकडाउन के बाद स्कूल्स के रीओपनिंग के लिए गाइडलाइंस का है, तो अभी जो पहले अप्रैल में गाइडलाइंस आई थी यूनिसेफ और यूनेस्को की और वर्ल्ड बैंक के साथ, उसमें उन्होंने बेसिकली जो है जो फ्रेमवर्क था ओपनिंग ऑफ री स्कूल, इसका जो है ओपनिंग का स्कूल्स का रीओपनिंग का, उसमें 6 डायमेंशंस का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। पॉलिसीज, फाइनेंसिंग, सेफ ऑपरेशन, लर्निंग, रीचिंग द मोस्ट marginalized per these are the 6 फ्रेमवर्क पे उन्होंने वर्क किया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अभी आई थिंक कल ही हमने न्यूज में देखा कि आई थिंक इस वीक में गाइडलाइंस उनकी आ जाएंगी, और MHRD की, उसमें भी उन्होंने वही मेंशन किया है कि इसमें जोन वाइज का जो उन्होंने मेंशन किया, जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस NCERT ने सबमिट की हैं, NCERT ने MHRD को की हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस, उसमें ना जोन वाइज को है कि ग्रीन जोन में फर्स्ट रीओपनिंग होगा, और उसके बाद 8 to 12 क्लास का जो है पहले उनको स्टूडेंट्स को सर ने भी बताया वही उसी तरह से। और उसमें ये कहा गाइडलाइंस जब आ जाएंगी तो इसमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होगा टीचर्स के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जितने भी, तो ये तो गाइडलाइंस होपफुली इस वीक में आ जाएंगी। इसके साथ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ग्रीन बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स है, हमने लास्ट टाइम भी ज्योति मैडम से बात हुई, ज्योति अरोड़ा मैडम से बात हुई थी कि हम इसको स्कूल्स के लिए एक बिजनेस जो बिल्डिंग फिटनेस इंडिकेटर्स का वर्क कर रहे हैं इस पे, तो हमने कुछ इसके पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक हम इसको पॉइंट्स को फाइनल करके अग्रवाल साहब के पास भेजेंगे, डॉक्टर साहब के पास, और उसको देख करके अगर फाइनल कर देंगे तो हम इसको स्कूल को भेज सकते हैं।
तो उसमें उन्होंने जो हमने उनकी गाइडलाइंस जो उसकी बिजनेस फिटनेस इंडिकेटर्स हैं आफ्टर जो है कोविड लॉकडाउन के बाद कि क्या करना चाहिए स्कूल्स को, तो उसमें पर्टिकुलरली स्कूल्स के लिए है कि उनकी पॉलिसीज हैं पहले तो, फिर इम्प्लीमेंटेशन है। तो पॉलिसीज में जो फोकस है सोशल डिस्टेंसिंग का है, एंड जो डिफरेंट जो स्पेसेस हैं लाइक डाइनिंग एरिया है, कैंटीन है, और इसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है उसमें जो यूज ऑफ जो टिश्यू पेपर हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, और जो यूज होते हैं उनके डिस्पोजल का क्या पॉलिसी है। देन उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है, आइसोलेशन एरिया रूम होना चाहिए स्कूल में, और मार्किंग ऑन फ्लोर्स का होना चाहिए कि हर जो जहाँ पे भी सपोज अगर बच्चे कहीं पे भी होते हैं तो उनकी मार्किंग होना चाहिए कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, और वाटर डिस्पेंसर एडिक्वेट होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एक जगह भीड़ ना हो उसमें। उसके बाद जो है एडिक्वेट नंबर ऑफ, अगर मास्क कोई बच्चा पहन के नहीं आता है तो उसका अरेंजमेंट होना चाहिए मास्क का, और क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन शेड्यूल होना चाहिए बाथरूम का और सब जो एरिया का, कि उसमें शेड्यूल देना चाहिए कि हम 2 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ जो टिश्यू पेपर है, मास्क, मैंने जो बताया पॉलिसी में वैसी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एंड जो डिफरेंट प्लेसेस पे प्लेसिंग ऑफ अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स है उनका होना चाहिए। देन इसके बाद है जो फॉरेन आइटम अगर स्कूल में आते हैं, कहीं से कोई आता है आइटम आता है तो उसके भी लिए क्या सैनिटाइजेशन प्रोसीजर है। और उसके अलावा जो अगर सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं उनके लिए जो है HAVC के क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये सब हम पॉइंट्स पे हमने काम किया हुआ है। मैंने इसके बहुत से पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आई थिंक वेरी जो एक शॉर्ट बना करके, और इसको जो है वंस डॉक्टर साहब अप्रूव कर देते हैं तो वी कैन सेंड टू स्कूल्स। तो इस पे हम वर्क कर रहे हैं। इसके बाद मैं एक और कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक हमारा इसी 31 से जो फर्स्ट डिजिटल कोविड परफेक्ट हेल्थ मेला शुरुआत हो रही है, डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था, और उसमें हमारा 4 जून को हम सभी जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, एसोसिएट हैं, उनके साथ एक 4 जून को हम वेबिनार कर रहे हैं उसमें इसी परफेक्ट हेल्थ मेला में, और दूसरा उसके साथ ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी सेलिब्रेशन उस दिन कर रहे हैं। बिकॉज वैसे 5 जून को होता है लेकिन हम 4 जून को कर रहे हैं बिकॉज ये है 5 जून को बहुत से प्रोग्राम्स होंगे, तो हम दोनों कंबाइन प्रोग्राम कर रहे हैं नेक्स्ट जो है थर्सडे 4 जून को। तो सभी स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें हमने एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के और भी हैं, तो विल डिस्कस दैट। तो इसमें हमारे लिए एक बहुत जो है करंट सिनेरियो में क्या एनवायरनमेंट की पोजीशंस हैं, क्या पोल्यूशन कंट्रोल इश्यूज हैं, क्या हमको और प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या वेस्ट मैनेजमेंट इशू होने चाहिए, वो हम कवर करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जितने भी स्कूल्स आज एसोसिएटेड हैं और जो नहीं आए हैं वो नेक्स्ट जो हमारा 4 जून को ये प्रोग्राम होगा जो डिजिटल मेला का है, वैसे 31 से शुरू हो रहा है लेकिन 4 जून को हम स्कूल्स के साथ ये जो कर रहे हैं इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट हों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. I'll ask Sapna to ask all our co-organizers to take questions and discuss out. Sapna ji. Sir, this is Pooja again from Springday School. Yes, सर ये जो आपने मंत्रा बताया मैं हूं ना, ये बहुत ही अच्छा मंत्रा लग रहा है टू जनरेट कॉन्फिडेंस इन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दैट वी आर देयर टू लुक आफ्टर यू। ओनली थिंग इज सर कि जो वायरस हमारे कांटेक्ट से स्प्रेड हो रहा है या हमारी खांसी से या हमारे बोलने से डेस्क पे गिर रहा है, डेस्क फुट पे गिर रहा है और बच्चे उसको टच करेंगे फिर अपने फेस पे लेके जाएंगे और बच्चों से बच्चों में फैलने की बात अलग है, पर वो घर जाके उनके घर में एल्डरलीज भी हैं, दादी हैं, नानी हैं, दादा हैं, उनके साथ कैसे हम इसको प्रिकॉशनरीली हैंडल करेंगे? देखिए ये लॉकडाउन में बच्चों ने घर के अंदर तो सब कुछ सीख लिया, बच्चों ने घर के अंदर तो सीख लिया कि कैसे रहना है, अब स्कूल में सीखना है उन्होंने। एंड अभी तक तो गाइडलाइंस यही है कि बच्चों को भी मास्क पहनाना है अभी तक तो, हालांकि यूरोप कह रहा है कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन बच्चे मोस्ट लाइकली स्कूलों में भी मास्क पहनेंगे अगर वो मास्क नंबर 1। नंबर 2 आप सब लोगों को बोला जाएगा कि बच्चे जब आते हैं सवेरे और जब जाते हैं और बीच में ब्रेक के टाइम पे सारे उनके जो जिस पे वो बैठ रहे हैं उसको 0.1% ब्लीचिंग पाउडर से डिकंटामिनेट किया जाए, वो ज़रूरी होगा। जैसे मैं अपनी टेबल को दिन में 3 बार डिकंटामिनेट करता हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को भी बताई जाएंगी। प्रिंसिपल की टेबल को भी आप सब लोग, स्कूल की टीचर की टेबल को भी दिन में 3 बार आप डिकंटामिनेट करोगे।
पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि हर 5 मिनट में हाथ धो रहे हैं, हर 10 मिनट में धाप कर रहे हैं। दिन में 3 बार अगर आप उसको साफ करते हो, इट इज सफिशिएंट। यस, नेक्स्ट भासिनी मैम। यस, हेलो सर, आई वांटेड टू से आस्क कि जब आप कह रहे हैं कि बच्चों को नहीं होता, बच्चों का एज ग्रुप मेंशन कीजिए, क्योंकि बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं वो आएंगे 14 से 18 साल तक के। तो आर दे इंक्लूडेड इन दैट कैटेगरी ऑफ बच्चे? बिकॉज सबसे पहले हम समझना चाहेंगे, सब लोगों को समझाना चाहेंगे कि बच्चों को क्यों नहीं होता सिवियरिटी। ये जो सेल है हमारे शरीर में, ये जो वायरस है, ये टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। ओके सर। हमारे यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उसमें से एक टी सेल होती है, ये टी सेल को डिस्ट्रॉय करता है। यस सर। और टी सेल हमारे शरीर में जनरेट करता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मेरे हार्ट और मेरे स्टर्नम के बीच में होता है। ये बच्चों में रहता है, और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं ये थाइमस ग्लैंड साइज छोटा होना चालू हो जाता है। सो 18 साल तक बच्चे नॉर्मली प्रोटेक्टेड है, 21 साल तक एक्चुअल में। हम लोग 21 लेके चलते हैं बच्चों को, तो 21 साल तक बच्चों को प्रोटेक्शन मिलता है। तो स्कूल एज के अंदर में हम टोटल प्रोटेक्शन बोलते हैं, क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड होती है, और वो थाइमस ग्लैंड बड़ों में जाके धीरे 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 कम हो जाती है। अभी बेंगलोर की एक स्टडी आ रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो थाइमस ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट निकाल के सीरियस केसेस को दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन थेरेपी, क्योंकि थाइमस में साइटोकाइन होता है। बहुत सारे जैसे लोग कहते हैं कि पीतल का पानी, जो इसका तांबे का पानी पीने से थाइमस ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, इसलिए बचपन से कहा जाता था रात को तांबे के पानी रख के सवेरे उठ के पी लो। ये वैदिक आंसर्स हैं, ये सब थाइमस से रिलेटेड थे। सो बच्चों को एक नेचुरल इम्यूनिटी है थाइमस से, औरतों को एक नेचुरल इम्यूनिटी है उनके सेक्स हार्मोन से। तो ये दो चीजें स्कूल के लिए लकी पॉइंट है, क्योंकि औरतें ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, दोनों को एक नेचुरल प्रोटेक्शन है इस बीमारी के लिए। सो बच्चों की डेफिनेशन हमारी 21 साल से कम है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि जैसे ही लड़का या लड़की 13-14 साल क्रॉस कर जाएंगे, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू फेस टू फेस, क्योंकि उनकी हाइट आपके बराबर होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। तो उस टाइम में फेस टू फेस ट्रांसमिशन के हिसाब से मास्किंग जरूरी हो जाती है। थैंक्स अ लॉट सर। मिस प्रियंका मैम। सर, प्रियंका फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिक स्कूल। सर, मेरी स्कूल काउंसलर का ये क्वेश्चन है कि अगर बच्चे, इन केस किसी बच्चे या टीचर स्टाफ को कोविड, गॉड फॉरबिड, लेकिन कोविड-19 निकल आता है स्कूल में, तो उस समय पेरेंट्स जनरली पैनिकी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो उस समय पेरेंट्स को मैं हूँ ना का मंत्रा तो है ही, लेकिन फिर भी पेरेंट्स इतना समझेगा नहीं समझेगा, ये टीचर आपस में कलीग्स जो हैं, स्टाफ टीचर्स में, ये पैनिक रिएक्शन ना स्टेट करे, ना पब्लिक करे, ना पैनिक रिएक्शन ना आप करोगे, ना पेरेंट्स करेंगे, ना बच्चे करेंगे। तो नीड रिएक्शन करेगी लोकल पुलिस, या फिर लोकल स्टेट, लोकल काउंसलर, एमएलए या एमपी, या वहाँ का डीसीपी। वो इमीडिएटली ऑर्डर दे देगा स्कूल को बंद कर दो। ओके, तो पैनिक रिएक्शन वहां से आएगी, आपके ऊपर में नहीं आएगी। आपके ऊपर तो ऑर्डर आएगा कि स्कूल को बंद कर दो। तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता। पॉलिसी के बारे में मैं नहीं बता सकता कि वहाँ की स्टेट पॉलिसी क्या बनेगी। मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, मेडिकल रूल्स, कि मैं अगर पेशेंट देख रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मास्क पहन रखा है, मैंने शील्ड पहन रखी है, और मेरे को एक पेशेंट दिखाने आता है, वो कहता है मेरे को बुखार है, मैंने उसको देखा, टेस्ट लिख के दे दिए, और उसने मास्क पहन रखा था, उसने भी ग्लव पहन रखे थे, मेरे कमरे में आया, आने से पहले उसने हाथ साफ किए, और शाम को रिपोर्ट आती है कि वो कोविड पॉजिटिव है। मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पूरी प्रिकॉशंस ली हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये करूँगा कि मैं उस एरिया को दोबारा से हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से साफ कर दूंगा। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक बच्चा या एक पेरेंट या एक सफाई कर्मचारी पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन हूं तो मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कौन पॉजिटिव है। आप बोलोगे कि ये फलाना मेरा क्लर्क है, ये पॉजिटिव है।
तो फिर मैं दूसरा सवाल ये पूछूंगा कि उसके घर में किसी को पॉजिटिव तो नहीं था पहले। अगर उसके आसपास कोई पॉजिटिव नहीं है तो मैं पूछूंगा कि लास्ट 48 आवर्स में कितने लोग उसके कांटेक्ट में आए, मान लीजिए। और नंबर 3, उसने मास्क पहन रखा था कि नहीं पहन रखा था। अगर उसने मास्क पहन रखा था तो फिर मैं पूछूंगा उसके कांटेक्ट में कितने ऐसे लोग आए जो आधा घंटे से ज्यादा कांटेक्ट में आए, उनको मैं बोलूंगा घर में क्वारंटाइन हो जाओ। कोई पैनिक नहीं, घर में क्वारंटाइन हो जाओ। उस ऑफिस में जहां वो आधा घंटे से ज्यादा बैठा हुआ है, मैं उसको 2 घंटे के लिए डिकंटामिनेट कर दूंगा एंड माय स्कूल विल स्टार्ट फंक्शनिंग। 2 घंटे का डिकंटामिनेशन प्रोसेसेस आर अवेलेबल। आप सब लोगों को मेरे से आप एड्रेस ले सकते हैं, प्राइवेट एजेंसीज अवेलेबल हैं जो पूरे मकान को 2500 रुपए में डिसैनिटाइज करते हैं। छोटी छोटी 300-400 रुपए की एक क्लोरीन डाइऑक्साइड की सैचे आते हैं, आप उस सैचे को पानी में डाल दो और कमरा 2 घंटे के लिए बंद कर दो, गैस निकल के पूरे एरिया को सैनिटाइज कर देगी। जैसे आप घरों के अंदर में डिसैनिटाइजेशन कराते हो, ऐसी अगर आप नेट पे देखोगे तो एजेंसीज भरी पड़ी हैं जो आपके पास आएंगे, 2 घंटे में डिसैनिटाइज करके निकल जाएंगे। तो इसलिए आप किसी चीज को भी 2 घंटे से ज्यादा आप बंद नहीं करेंगे। ये तो होगा, ये तो किसी के घर में भी हो सकता है। अब मेरे आज ही किसी पेशेंट के घर में एक मरीज था, अब उस मरीज को आज 10 दिन पूरे हो गए, अब वो क्योर हो गया, तो मैं उसने एजेंसी को फोन किया, उसने उस कमरे को डिसैनिटाइज किया, अब सब लोग जाने चालू हो गए उसके कमरे के अंदर में। तो ये डर किस बात का? तो इसलिए अगर कोई आदमी आपके पास आता है हम स्कूल बंद करेंगे, तो यू हैव टू रेजिस्ट। किस गाइडलाइन से आप बोल रहे हो? इफ यू डोंट रेजिस्ट, वो तो आज बड़ा आसान है ना, स्कूल बंद करना, ऑर्डर देना सबसे आसान है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे आसान है, बंद कर दो। लेकिन आपका एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल फर्ज बनता है कि आप उनसे डिबेट करोगे क्यों बंद करें। पहले रिस्क बताओ मेरे को, हाई रिस्क का हम मैनेजमेंट करेंगे, लो रिस्क का मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क बताइए। सो एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क। जब हम लोगों ने एज ए मेडिकल प्रोफेशन सब जगह से लड़ाई लड़ी, तो हमने कहा फिर ये मैक्स हॉस्पिटल में जहाँ कोविड पेशेंट है उसको बैन कर दो। वहाँ कोविड पेशेंट क्यों रखे हुए हैं आपने? रखे हुए हैं ना कोविड पेशेंट्स आपने। सो कोविड पेशेंट्स के साथ में भी एक पॉलिसीज होती है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिसी एंड नॉट टू वरी। You have to ask, you have to debate, you have to fight the rights of your school. आप अपने स्कूल की बदनामी तो नहीं होने दे सकते ना। आप तो यू कांट से कि बैन कर दो, बंद कर दो। अभी तो यही हो रहा है। अब जैसे क्या करेंगे, लोग आएंगे उठा के ले जाएंगे टीचर को। क्यों ले जाएंगे टीचर को उठा के? वेयर इज द पॉलिसी? अंडर विच लॉ आर दे टेकिंग? अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव आता हूँ, कैन यू से कि पुलिस आएगी मेरे को उठा के ले जाएगी? मेरे पास राइट है मेरे पास में, अगर मैं पॉजिटिव आ गया सो व्हाट? मैंने मास्क पहन रखा है, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं, मैं सारी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, मैं घर में अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लेता हूँ। उठा के तो नहीं ले जा सकते ना मेरे को। वो सिचुएशन चली गई। नाउ होम क्वारंटाइन। और अगर आपने टेस्ट नहीं भी कराया तो होम क्वारंटाइन इज सफिशिएंट। अगर आपके किसी क्लर्क को पॉजिटिव आ जाता है, मान लीजिए रात को फोन आया कि इस क्लर्क को पॉजिटिव था, तो आप नेक्स्ट डे सुबह उस क्लर्क के टाइम पे जो 4 लोग बैठते हैं, आप उनको बोलेंगे होम क्वारंटाइन हो जाए, उस कमरे को डिसैनिटाइज कर दो, काम चालू, दुनियादारी चालू। अब ये थोड़ी है स्कूल बंद कर दोगे, यहाँ पे एक आदमी आके बैठा था जो पॉजिटिव था। नहीं कर सकते आप इसको। सो दैट्स अ रीजन ऑफ, सी मैं आपसे मेडिकल बात कर रहा हूँ, मैंने पॉलिसी के बारे में एक भी बात नहीं करी। हर पॉलिसी के ऊपर में मैंने पॉलिसी वालों को छोड़ दिया। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर डर जाओगे उस सिचुएशन में, फिर तो स्कूल बंद हो गया। और अगर वो स्कूल बंद हो गया तो अगले साल आपके जो एडमिशन होंगे ना 50% नहीं होंगे। सोच लीजिएगा आप, हमारे हॉस्पिटल्स में जिस हॉस्पिटल को बंद हुआ पूरे इंडिया में, जिस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद किया, वो हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गए। लोग डरते हैं वहां जाते हुए। बंद हुआ इसका मतलब है कुछ लफड़ा होगा, इसका मतलब है कि वहां प्रिकॉशंस नहीं ली जाती। तो हम लोगों ने लड़ झगड़ के, मेडिकल प्रोफेशन ने, हमने बोला है कि अगर हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आता है नॉन कोविड हॉस्पिटल में, सो व्हाट, हम 2 घंटे में डिसैनिटाइज करके दिखाएंगे। सो यू शुड हैव ए रिटन पॉलिसी कि मेरे यहाँ पे अगर पॉजिटिव केस आएगा तो मैं क्या करूंगा। आप अपनी रिटन पॉलिसी बनाइए, मेरे से बताइए, आई विल हैव मोर पीपल ऑन बोर्ड एंड यू कैन कम बैक विद योर रिटन पॉलिसी एंड यू पुट इट टू द पेरेंट्स। हमारी ये रिटन पॉलिसी है। अगर आप रिटर्न पॉलिसी नहीं होंगे तो कोई आपका लोकल एमएलए आ जाएगा, आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट आ जाएगा वहां का,
कि ये बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, और अगर आप डर गए और 10 पेरेंट्स आके चिल्लाने लग गए बंद करो बंद करो बंद करो, आप बंद कर दोगे, और एक बार बंद हो गया स्कूल तो बदनामी हो गई, नेक्स्ट डे हेडलाइन स्कूल बंद। डरना किस बात का है? वेयर इज द फियर? कोई छुआछात की बीमारी है क्या? ये क्या कोई ऐसी कोई मर्डरर है क्या? क्या वो क्या AK-45 लेके 47 लेके आ गया है क्या वायरस? सो व्हाट, हो गया तो हो गया। दिल्ली के अंदर में 10% लोगों को पॉजिटिव है। इस वक्त में जो 956 लोग यहाँ पे मेरे साथ में प्रोग्राम देख रहे हैं, सबके टेस्ट कराओगे तो कम से कम 50 लोगों का पॉजिटिव निकलेगा। सो व्हाट? So my answer is so what? You have to be firm. So what? लोकल MLA है, काउंसलर है, MP है, वो अनएजुकेटेड लोग हैं, वो आपके ऊपर आके बोलेंगे कि बंद कर दो स्कूल को, और फिर कौन करेगा बंद करने वाला? कोई आपका दुश्मन ही आके चिल्लाएगा बंद कराओ बंद कराओ बंद कराओ बंद कराओ। So what? You have to be firm. You have to be firm with science. और जहां दिक्कत हुए, मैं हूं ना, वो मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं, मैं हूं ना। उस टाइम पे मेरी बात कराइए, किस ग्राउंड के ऊपर में वो मना कर रहे हैं? दे कांट। तो कल क्या सुप्रीम कोर्ट में एक केस आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को आप बंद कर दोगे? हाई कोर्ट में केस आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में 3 स्वाइन फ्लू के केसेस आए थे तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई थी क्या? नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। So therefore I am repeating every time. Next week में चाहो तो इसी डर के लिए फिर बात करेंगे। I am only preparing, मैं किसी सरकार पॉलिसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। I am only educating you because you are the source of information to the society. You are the correct source of information to the society. और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि कोई भी बात होती है, 24/7 you can call me and talk to me. I am a responsible person. I represent the collective consciousness of 19 medical associations. I am the president of all Asian medical associations. So whatever I am saying is, I mean it. It is not me who is talking. It is the collective consciousness of all the Asian countries who is talking. So don't be afraid. मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना, आप बोलो मैं हूँ ना। Yes. Yes, sir. मॉरल बूस्टअप हुआ इससे, आपकी बात से हमारा एक्चुअली में। Thank you. Yes, sir. You have given us lots of confidence. You have given us confidence to open the schools again. Yes, sir. Sir, physical fitness classes के लिए या एक्टिविटी क्लासेस के लिए, जहाँ पे हम डांस की बात करते हैं, म्यूजिक की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। देखिए, फिटनेस पे याद रखिए, जब भी जैसे मैंने कहा था कि लोग ग्रुप में गाएंगे नहीं, चैंटिंग नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, वैसे ही जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज से सांस ज्यादा बाहर निकलेगा, उस सिचुएशन में मिनिमम डिस्टेंसिंग इज 9 फीट, 6 फीट। जैसे मैं भाग रहा हूं तो मेरी हवा ज्यादा निकल रही है, तो आप खुद करके देख लो। जब भागोगे तो हवा ज्यादा निकलेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, डीप सांस लोगे आप, तो उसमें 9 फीट का डिस्टेंस है, तो आप उसके हिसाब से प्लान करो। और मास्क ये तो सारी मैथमेटिकल है, इसमें कोई चैलेंज नहीं। किसने बोला मास्क नहीं पहन सकते? बिल्कुल मास्क पहन सकते हो, लेकिन मास्क का ध्यान रखिए, ब्रीदेबल मास्क होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्रीदेबल मास्क की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जब आप दौड़ते हो तो पॉल्यूशन के टाइम पे नहीं बोलते थे मास्क पहनो, तो मास्क कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है वो मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जब से बोला गया है कि आप सिंपल घर के मास्क पहनो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये टॉर्च है। मैंने इस मार्च में टॉर्च लगाई तो आपको दिखाई दे रहा है, टॉर्च लाइट दिखाई दे रही है, तो ये ब्रीदेबल मास्क है। जो भी कपड़ा आप बांध रहे हैं उसमें से लाइट क्रॉस होनी चाहिए, देन इट इज ए ब्रीदेबल मास्क। ब्रीदेबल मास्क से आप पहन के एक्सरसाइज पीटी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्रीदेबल मास्क नहीं है फिर तो आप सांस ले ही नहीं पा रहे, हवा कहां से आएगी? तब आदमियों को चोकिंग होता है। तो अगर आपने मान लीजिए मैंने ये मास्क पहना, सपोज मैंने ये मास्क पहना, और ये देखिए हवा नहीं आ रही ना, लाइट कम आ रही है।
कम आ रही है ना? नहीं आ रही प्रैक्टिकली, हाँ बहुत कम आ रही है, तो ये मेरा कम ब्रीदेबल मास्क है, तो आई हैव टू टेक प्रिकॉशंस। और अगर मैं 9 फीट का डिस्टेंस रख रहा हूँ तो मास्क की वैसे ही जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सारे टीचर्स लोग सवेरे वॉक पे जा रहे हो और 6 फीट की डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो तो मास्क की जरूरत ही नहीं है आपको। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर मैं आपसे मिलने आऊंगा पूजा जी, तो कहाँ बैठूंगा? अगर मैं आपके घर में आपसे मिलने आया तो मैं कहाँ बैठूंगा? अच्छी सी सीट साथ में लगानी पड़ेगी सर आपकी। बिल्कुल गलत है। अच्छा, फेस टू फेस कैसे बोलेंगे? आप तो आदरणीय टीचर हैं, तो मुझे आपके चरणों में बैठना पड़ेगा। एक सेकेंड, हंसने की बात नहीं है, ये कल्चर वापस आएगा। गुरु है। अगर आप गुरु हैं और मेरे बच्चे को पढ़ा रही हैं, या आप गुरु हैं, तो मैं आपके चरणों में बैठूंगा। चरणों में क्यों बैठूंगा? ताकि फेस टू फेस मीटिंग हो। अगर मैं आपके सामने बैठा तो फेस टू फेस मीटिंग हो गई। तो इसलिए हमारे यहाँ पे तो ये है ना, अतिथि देवो भव, उसको हाई पेडेस्टल पे बिठाओ, उसको थोड़ा ऊपर बिठाओ, दैट्स ऑल। यही तो बात हो रही है। टीचर्स थोड़ा ऊपर बैठे, फेस टू फेस ना बैठे, दिक्कत क्या है इसमें? हम क्यों बार बार शर्म ये कहते हैं कि बच्चे मेरे बराबर हो गए हैं, बच्चे टीचर्स कहती हैं कि स्टूडेंट इज माई फ्रेंड। नहीं, फ्रेंड नहीं है आपके वो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता मत भूलो, वो रिश्ता अलग है। हम आज भी, मेरे बच्चे तैयार नहीं होते, बट मैं आज भी 40 साल बाद भी अगर मेरे कोई पुराने टीचर मिलते हैं तो सबसे पहले चरण छूता हूं उनके। वो फेस टू फेस मीटिंग करेंगे तो इन्फेक्शन होगा। कम से कम आपने नहीं करना तो अब टीचर्स की सीट थोड़ी ऊपर कर दो घर के अंदर में। अगर आपका फेस टू फेस मीटिंग नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली कोरोना? टीबी, दुनिया भर के इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे। फेस टू फेस मीटिंग में सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं। ये जो टीबी हो रहा है खत्म हो जाएगा अगर आप फेस टू फेस मीटिंग बंद कर दोगे तो। क्या दिक्कत है आपको? यस, गो अहेड। हमारी लास्ट वीक की को-होस्ट मिस रीना राजपाल कुछ बोलना चाहती हैं सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। Another very nice session. Sir, here today I want to speak as a common man. आपने बहुत सारी गाइडलाइंस अभी बताई जो कि चेंज हुई हैं, तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है कॉमन मैन को, ना ही उसको ये मालूम है कि मास्क कहाँ से मिलने हैं, कौन सा मास्क उसके लिए ठीक है, बिकॉज देयर आर सो मेनी मास्क अवेलेबल विद द केमिस्ट. आर वी सपोज्ड टू बाय इट फ्रॉम अ केमिस्ट? Where should we buy it for? What should be the right cost? If in the school we are to provide masks, then which ones should we provide? Like we decide upon the category by checking out the way you have told us. मेरा simple answer education is not available as a proper guideline for the general public. Therefore, every school will come out with their own guidelines. Pollution के लिए, yes, our masks are different. But for corona prevention, we need to use a simple cloth which is breathable. That's all. Forget about any cloth will do which is breathable. Any cloth will do which is breathable. This is breathable, use it. Simple answer है. The word याद रखिए, breathable. Forget about the filter. Forget about N95. Forget about N90. Use the word breathable cotton mask. कोई भी घर का कपड़ा आप यूज कर सकते हैं. Breathable mask. As a medical, जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, then we go back to a patient mask. A patient mask is different from a healthy person's mask. आप सब लोग हेल्दी हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे. Use a breathable mask. सर एक सेकेंड सर, आपने जैसे कहा कि अब गाइडलाइंस ये नहीं है कि क्वारंटाइन के लिए कोई उठा के जाएगा, घर पे क्वारंटाइन होना ही ठीक है. Now this was never communicated to us as a general public. So these are certain things which I want to point out कि अगर हमें गाइडलाइंस मिल जाएं तो as a common citizen and of course for the school. रीना जी, हमारी फैमिली 1000 लोगों की, आज 1000 लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. ये मेरी फैमिली है. आपकी फैमिली के आगे 5-5 हजार लोग हैं. मैसेज पहुंचाइए, पहुंच जाएगा. सरकार तो होम क्वारंटाइन वर्ड लिख रही है ना, बार बार पेपरों में आया हुआ है, होम क्वारंटाइन अलाउड फॉर पेशेंट्स. दिस इज होम क्वारंटाइन.
अगर आपका हाई रिस्क पेशेंट नहीं है मान लीजिए, तो आप घर पे होम क्वारंटाइन में रह सकते हो। यानी कि माइल्ड केसेस, जिनको माइल्ड सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक केसेस को होम क्वारंटाइन अलाउड है। अगर आप सीरियस हो तो वैसे ही एडमिट होंगे हॉस्पिटल के अंदर में, उठा के नहीं ले जाएंगे आपको। दिस इज फॉर 90% ऑफ द पेशेंट्स आर माइल्ड क्वारंटाइन। माइल्ड क्वारंटाइन पेशेंट्स को अपने घर पे, अगर आप आपके घर पे आप अगर ध्यान नहीं देने वाले तो उठा के ले जाएंगे। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है, आइसोलेशन का मतलब होता है कमरे में रहना, क्वारंटाइन का मतलब होता है सेम फ्लोर पे रहना, मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अपने आप को मॉनिटर करना। सो पेशेंट पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में है ही एक कमरा, फिर तो उठा के लेके जाएंगे ना। अगर आपको एक कमरा नहीं मिल रहा तो फिर तो लेके जाएंगे अस्पताल में उसके साथ में। अगर एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं और आप पॉजिटिव हो तो बाकी 9 लोग कहाँ जाएंगे? उन सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। उनको बचाने के लिए फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 है, आप बाहर से आ रहे हैं मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं दिल्ली से जा रहा हूँ और मैं गुजरात पहुंचा, वहां जाके मैं पॉजिटिव निकल आया, तो आई हैव अ चॉइस टू स्टे इन ए होटल फॉर 14 डेज। मैं कहूंगा कि मैं होटल के अंदर में चेक इन कर रहा हूँ, 14 दिन तक इसी कमरे में रहूंगा, वो आपका चॉइस है। अब ये जो लोग बाहर से आएंगे, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स होगी, अगर इन्होंने बोला क्वारंटाइन करना है, अब जैसे मेरी साली लंदन से आना चाह रही है तो उसके पास चॉइस है, वो दिल्ली आके होटल में चेक इन हो जाएगी 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद में वो घर में क्वारंटाइन हो जाएगी। तो ये सारी चॉइसेस हैं हमारे पास में, ठीक है ना। ये चॉइसेस है। अब ये सरकार अगर एडवर्टाइज करे इसको तो फिर तो सारे लोग लड़ेंगे। फिर तो कोई आदमी जिसके घर में 10 लोग हैं वो भी लड़ेगा कि मैं तो घर पे ही रहूंगा। तो ये चीजें डॉक्टर्स बताते हैं, डॉक्टरों को मालूम है। एटलीस्ट मेरे 35 मरीज ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन में हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। यस, पूजा जी आप बात कर रही थी। सर एक एयर पूजा जी कुछ कंडीशनर बोलना की चाह रही थी। हाँ जी सर, एयर कंडीशनर की आपने बात करी थी सर, की एयर कंडीशनर की हवा पीछे से आनी चाहिए। हमारे स्कूल में सेंट्रल एसी भी है और एसी का जनरल ये माना जाता है कि वो एयर को रोटेट करता है। तो इस टाइम पे क्या एसी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए स्कूल्स में? अभी जून जुलाई के टाइम पे तो एसी की जरूरत नहीं है, बंद रखो। मई जून की अगले साल बात करेंगे। जुलाई इज नॉट द मंथ फॉर एसी, बंद रखिए। और अगर एसी चलाना है तो उसमें CPWD की गाइडलाइंस हैं सेंट्रल एसी के अंदर में, कितनी हवा उसके अंदर में चालू रखो वो करिए। लेकिन विंडो एसी अगर आप रख रहे हैं तो उसकी हवा आपकी तरफ नहीं आनी चाहिए, और अगर आपकी तरफ आ रही है तो एसी और आपके बीच में कोई बैठना नहीं चाहिए। प्रिंसिपल याद रखो। तो लोगों को बोला अरे एसी के बीच में मेरे को क्यों बैठ रखा है, मेरी हवा क्यों ब्लॉक कर रहा है, वो ऐसे याद रखो। सर एक और क्वेश्चन है कि पेरेंट्स का कि जुलाई के मंथ में ह्यूमिड वेदर होता है दिल्ली में, एंड वायरस जो है थ्राइव्स इन द ह्यूमिड वेदर। तो इसका कोरोना का कैसे रहता है? देखिए ऐसी अगर हम इस थ्योरी को मानते हैं कि ह्यूमिडिटी गर्मी से वायरस का कोई फर्क पड़ता है, तो वायरस गर्मियों में मर गया होता। इस गर्मियों में वायरस नहीं मरा, और दिल्ली में वायरस के कल 700 केसेस आए, 792 केसेस आए इतनी गर्मी के बावजूद भी। तो ये याद रखिए, मेरे अंदर, मेरे शरीर में ना ह्यूमिडिटी चेंज होती ना टेम्परेचर चेंज होता। तो मेरे अंदर जो वायरस है वो तो जी रहा है, और मेरे अंदर से आपके अंदर में जाने में 1 सेकंड लग रहा है या 5 मिनट लग रहे हैं। उस 5 मिनट में ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट आएगा? और अगर सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट होता तो गर्मियों में वायरस मर गया होता। ये वायरस नहीं मरा तो वो हमारी जो थ्योरी थी वो फुस हो गई। ये मेरा एजम्पशन है, देयर इज नो प्रूफ। तो अगर वायरस, हम सब लोग सोच रहे थे कि किसी तरीके से लॉकडाउन कंटिन्यू करो, गर्मियां आएंगी, गर्मियों में खत्म हो जाएगा तो हमारा लॉकडाउन सक्सेसफुल हो जाएगा, वो हुआ नहीं। ऑन द कंट्रारी गर्मियों में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। सर कल ऐसी न्यूज भी आ रही थी कि फ्रांस में स्कूल खुले और उससे एकदम से सर्ज आया कोरोना वायरस में। तो वो क्या टीचर्स के अंदर देखा गया होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स में तो अगर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है या स्टूडेंट्स एसिम्प्टोमेटिक हैं, उस केस के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है पालन ना हुई हो वहाँ पे। मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसको, मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ। मैंने फ्रांस में मेरी एसोसिएशन को मैसेज भेजा है कि डिटेल्स भेजे। मोस्ट लाइकली उन्होंने मिक्सिंग अलाउ करी होगी लोगों को। मिक्सिंग तो अलाउ नहीं करनी, मिक्सिंग ऑफ वेरियस क्लासेस, पेरेंट्स टीचर्स की मिक्सिंग,
टीचर्स की बच्चों के साथ में मिक्सिंग, फेस टू फेस मीटिंग की मिक्सिंग बड़ों छोटों के अंदर में, तो उसके अंदर में इन्फेक्शन होने का मे बी आई विल गेट यू द आंसर बाय नेक्स्ट टाइम कि फ्रांस में क्या हुआ था। सो 11 हो गए हैं एंड स्टिल 838 पीपल आर देयर। आई कैन अंडरस्टैंड कितना कंसर्न है लोगों के साथ में। सो वी विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे एंड हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे 2-3 फंक्शंस हों, बिकॉज 31 से 6 जून के बीच में हो सकता है एक एनवायरनमेंट डे अलग से हो और एक नॉन एनवायरनमेंट के ऊपर में अलग से हो। तो आप सब लोगों को सबसे, आप में से जो 5 मेरे टीचर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा कौन है उम्र में? सर, सुशांत, आप सर, आप हाथ सामने ऐसे कर दीजिए। तो आपकी तरफ से मैंने आशीर्वाद ले लिया। मेडिकल फ्रेटर्निटी को आप सबको रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो उस आशीर्वाद के साथ में कि हम सब लोग सही रहें और मेडिकल प्रोफेशन ये कहता रहे मैं हूं ना, और आप सब लोग सही रहे, स्वस्थ रहें एंड फॉलो ऑन द मैसेज मैं हूं ना। अगर ऐसा करेंगे, सेम मैसेज जाएगा, तो हम इस शहर को ठीक कर पाएंगे। और हमारा ये प्रोग्राम जो वीकली है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट फॉर ए ईयर। आप लोग कम ज़्यादा होते रहेंगे। आप लोगों को डेफिनेटली जब भी आपको समय मिले, अगर आपको लगा कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो 5 मिनट के लिए जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। और ये प्रोग्राम फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव होता है। इसके लिंक को ये आज अभी फेसबुक पे DRKK अग्रवाल और यूट्यूब भी DRKK अग्रवाल के पेजेस में लाइव होता है। आप आगे पास ऑन कर सकते हैं कि इसको देखें, इसको पास ऑन करें। और हर बारी मेरा सबके साथ में यही प्रेयर रहेगी कि हम लोग स्वस्थ होके इसके डिस्कशंस करते रहें और हम लोग कॉमन गाइडलाइंस निकाल के लाएं और हमारे ऊपर में कोई दबाव ना हो पेरेंट्स का, लोकल पॉलिटिशियन का, और हम सब अपने बच्चों को स्वस्थ रख सके। आप सब लोगों का आशीर्वाद लेके मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। फाइनल कमेंट्स सपना जी टू क्लोज। थैंक यू सो मच। मेरे साथ डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग भी हैं जो मेरी मेडिकल डायरेक्टर हैं, अच्छी कवित्री हैं, एक्स आर्मी हैं। और कभी भी अगर ऐसा लगा कि किसी कारणवश मैं नहीं रहा, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर में आधा घंटा अगर मैं कहीं पर भी डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए आना, तो डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग एंड डॉक्टर KK कालरा विल रिप्रेजेंट मी कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो। और अगर आपका कोई सवाल मेरे पास आता है तो हो सकता है कि मैं बिजी हूँ, तो डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग को पास ऑन कर दूँ। तो शी इज़ माई शेडो इन, तो आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है तो अगर ये जो कुछ भी बोल रही हैं तो समझ लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। प्रणाम। सपना जी वोट ऑफ थैंक्स करके नमस्कार करो। थैंक यू सो मच सबको जो भी जिसने भी हमारे साथ को ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मीटिंग में अगर आपको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सपना, आपके बहुत हेल्प करी। थैंक यू। Thank you, Sapna. Thank you very much. Thank you, Dr. KK Agarwal. It was a wonderful session once again. Thank you, Dr. Saab. Thank you. Thank you, Sapna, and thank you, Dr. Thanks a lot.